Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be talking about Newton's third law of motion. This topic is meant for class 11 students of CBSE, ISC and different state boards. This topic will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. Newton's third law of motion. It states that to every action there is an equal and opposite reaction. एक्शन को हम बोलते हैं क्रिया और रिएक्शन को बोलते हैं प्रतिक्रिया. तो थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. थर्ड लॉ के संबंध में इन बातों का जानना जरूरी है. फर्स्ट क्या है कि एक्शन और रिएक्शन जो हैं सो और कुछ नहीं बल्कि फोर्सेस हैं. जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसी तरह से एक्शन और रिएक्शन भी और कुछ नहीं बल्कि फोर्सेस हैं. इनका दूसरा नाम दिया गया है एक्शन और रिएक्शन. जो पहले काम करना शुरू करता है उसे हम बोलते हैं एक्शन और जो बाद में उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन. ओके. दूसरा पॉइंट क्या है कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज हैं ये हमेशा एक साथ उत्पन्न होते हैं और रिएक्शन उसी समय तक रहता है जब तक कि एक्शन प्रेजेंट है. सो द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अपीयर साइमल्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड द रिएक्शन एग्जिस्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द एक्शन इज प्रेजेंट. ठीक है, जब तक एक्शन है तभी तक रिएक्शन का फोर्स भी रहेगा. अर्थात forces in nature always appear and they appear too in pairs. अर्थात नेचर में जो फोर्सेज हैं वो हमेशा पेयर में ही उत्पन्न होते हैं और गैप भी होते हैं. थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज दैट एक्शन एंड रिएक्शन always act on two different bodies and hence in no case can produce equilibrium. एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस जो हैं वो हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं और इसलिए कभी भी ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. दो फोर्सेस यदि इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करेंगे तो जरूरी है दोनों फोर्स एक ही वस्तु पर लगें और विपरीत दिशाओं में लगें और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो. जैसे कोई बॉडी ये है इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से एफ, इसके बराबर और अपोजिट दिशा में फोर्स लग रहा है एफ. ऐसी स्थिति में ये वस्तु जो है सो रहेगी इक्विलिब्रियम में. ठीक है, लेकिन यदि एक फोर्स लग रहा हो इस वस्तु पर, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा हो दूसरी वस्तु पर इस पर, तो क्या इक्विलिब्रियम संभव है वस्तु का? बिल्कुल नहीं. ठीक है, इसलिए एक्शन और रिएक्शन जो है सो दो वस्तु पर लगते हैं और ये कभी भी किसी भी परिस्थिति में ये इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. ओके. To give you the clear concepts of action, reaction, and equilibrium of a body, I present here some illustrations. Now, in figure 1, this is your figure 1. We have a table, and on a table, we have a book. The weight of the book acts on the table, which we call action. So, this is the action which is equal to the weight of the book. This acts on the table. So, this is the force exerted by book on the table. By reaction, table exerts a force on the book in the opposite direction. That means in the vertically upward direction. This we call reaction. And this is in magnitude equal to the weight W of the book. To show you clearly where the force of action and reaction act, we have shown you in figure 2 the book separated from the table. Okay, although they are in contact with each other. So the weight of the book, that's W, acts on the table. Clear?
Because the book was lying on the table, the weight of the book also acts on the table. So this is the action of book on the table. By reaction, by Newton's third law, the table exerts a force on the book in the vertically upward direction, which we call reaction. So it appears from this figure that there is only one force, the force of reaction, acting on the book in the vertically upward direction. If there is only one force acting on the book in the vertically upward direction, then the book should move in the vertically upward direction. But the book is in equilibrium. ऐसा क्यों? इसे हम फिगर 3 से समझने का प्रयास करते हैं. दिस इज योर फिगर 3 हियर. ओके. बुक का अपना वेट जो है, दैट इज एक्टिंग also at its center of gravity. Okay, this is the weight of the book acting at its center of gravity. Because the book is on the table, this weight also acts on the table. और चूंकि टेबल पर ये वेट लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ये टेबल जो है बुक फोर्स लगा रहा है, द फोर्स ऑफ रिएक्शन इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वेट की लगने की दिशा के अपोजिट. क्योंकि वेट काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में, इसलिए जो फोर्स ऑफ रिएक्शन है वो काम करेगा वर्टिकली अपवर्ड दिशा में. अब देखिए इस फिगर 3 में हम दिखा रहे हैं कि बुक पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक वेट डब्ल्यू नीचे की ओर वर्टिकली डाउनवर्ड और एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड विच इज equal in magnitude to the weight W of the book. Because there are two forces acting on the book which are equal in magnitude but opposite in direction, the book remains in equilibrium. Clear? इसलिए यदि बुक पर एक ही फोर्स लगता तो बुक को ऊपर चले जाना चाहिए था विथ एन एक्सेलरेशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ. लेकिन चूंकि बुक स्थिर है इसलिए बुक पर एक और फोर्स भी लग रहा होगा जिसके कारण बुक स्थिर है. ये फोर्स कौन सा है? ये फोर्स वस्तु का वेट है W, जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर काम करता है. हम फिगर 3 से देख रहे हैं क्लियरली कि बुक पर दो फोर्स हैं, एक इसका अपना वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड दिशा में लग रहा है और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन जो टेबल का है, ये वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है. क्योंकि ये दोनों फोर्स ऑफ रिएक्शन और इसका अपना वेट दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए नेट फोर्स लगने वाला बुक पर 0 है एंड देयरफॉर द बुक इज इन इक्विलिब्रियम. अब क्या होगा यदि हम बुक के नीचे से टेबल को हटा लें? जैसे ही हम टेबल को बुक के नीचे से हटाते हैं, टेबल के द्वारा बुक पर लगने वाला फोर्स ऑफ रिएक्शन ये डिसअपीयर हो जाता है. क्योंकि टेबल पर अब बुक का एक्शन नहीं है, इसलिए टेबल का रिएक्शन जो बुक पर लग रहा था वो भी अब नहीं है. लेकिन बुक का अपना वेट है जो उसके सीजी पर काम करता है और इसी वेट के कारण बुक नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से गिरने लगती है. ये हमने फिगर 4 में दिखाया है. देखिए ये है हमारा फिगर 4. हमने बुक के नीचे से टेबल को हटा दिया है, इसलिए टेबल पर जो बुक के कारण एक्शन लग रहा था जो बुक के वेट के बराबर था वो अब नहीं लग रहा है. इसलिए अब टेबल का रिएक्शन जो था वो भी अब नहीं है. हम देख रहे हैं इस फिगर में बुक पर सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है एंड दैट इज इट्स वेट W. एंड बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट W, द बुक स्टार्ट्स फॉलिंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन G, which is the acceleration due to gravity. ओके. आइए अब हम देखते हैं कि हम चलते कैसे हैं. जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को किसी एंगल थीटा पर प्रेस करते हैं नीचे की तरफ एट एन एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल. मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका वेट लग रहा है नीचे की ओर mg और ये ग्राउंड का रिएक्शन है n आदमी पर. जब व्यक्ति चलता है तो ग्राउंड को प्रेस करता है किसी एंगल पर विद दी हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज आवर एक्शन ऑन द ग्राउंड.
at an angle theta with the horizontal. ग्राउंड न्यूटन के तीसरे नियम से एक फोर्स लगाता है व्यक्ति पर उल्टी दिशा में, विच कॉल्ड आर। आर का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में, ये हो गया आपका आर कॉस ऑफ थीटा, और एक वर्टिकल दिशा में हो गया कितना, ये हो गया आपका आर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल दिशा में एक फोर्स नीचे लग रहा है, दैट इज mg, और ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे हैं, एक आर साइन थीटा जो आर का वर्टिकल कंपोनेंट है, और दूसरा हमारे वेट के कारण अर्थ का जो रिएक्शन हम पर है वो है n। तो चूंकि व्यक्ति का वर्टिकल दिशा में कोई गति नहीं है, इसलिए वर्टिकल दिशा में व्यक्ति पर लगने वाला कुल फोर्स 0 होना चाहिए, एंड देयरफॉर द कंपोनेंट r sin theta together with the normal reaction n of the ground in the vertical direction balances the weight of the man mg. The horizontal component of the force, that is r cos theta, takes the man in the forward direction. ठीक है, आइए हम अब फिगर 5 की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में थोड़ा देख लें। ओके, सो दिस इज आवर फिगर 5। ये व्यक्ति है, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ग्राउंड पर। ग्राउंड का रिएक्शन व्यक्ति पर n है, ऊपर की ओर। चलने के लिए व्यक्ति ग्राउंड को एक एंगल पर पुश करता है, दिस इज कॉल्ड एक्शन, एंड दिस इज प्रेजेंट बाय a। ठीक है, किस एंगल पर है, ये एंगल आपका थीटा है। तो ग्राउंड बाय न्यूटन थर्ड लॉ exerts a force of reaction on the man, and this is here shown by r। क्लियर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में और एक वर्टिकल दिशा में। वर्टिकल दिशा में ये आर साइन थीटा है, और हॉरिजॉन्टल दिशा में आर कॉस थीटा है। अब व्यक्ति पर वर्टिकल दिशा में लगने वाले कुल 3 फोर्स हैं, एक mg उसका अपना वेट, एक n ग्राउंड का रिएक्शन व्यक्ति पर ऊपर की ओर, और एक r साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड, विच इज द कंपोनेंट ऑफ r इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, चूंकि व्यक्ति की कोई गति वर्टिकल दिशा में नहीं है, इसलिए वी मस्ट हैव mg मस्ट बी इक्वल टू n प्लस r साइन थीटा। ठीक है, तब नेट फोर्स 0 हो गया वस्तु पर वर्टिकल दिशा में, वस्तु का गति ऊपर दिशा में वर्टिकल दिशा में नहीं होगा। अब जो फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दिस इज r cos थीटा। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द मैन मूव्स टू द राइट। ठीक है, यहाँ हमने व्यक्ति पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स की चर्चा नहीं की है। यदि कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा हो तो व्यक्ति पर हॉरिजॉन्टल दिशा में लगने वाला कुल फोर्स r cos थीटा है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है इस दिशा में। यदि व्यक्ति पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी हो, काम कर रहा हो, और वो उसको हम F से रिप्रेजेंट करें, तो व्यक्ति पर हॉरिजॉन्टल दिशा में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये होगा r cos थीटा माइनस F, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स गति के विपरीत दिशा में लगता है। सो नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट इन द फिगर is r cos theta minus f, and this must be equal to mass of the man into his acceleration. Okay, and because of this the man moves to the right. ठीक है, so this is how we move. Next we consider the motion of a train. We call it railway train, isn't it? Railway train. Okay, this is made of two words, rail and way. रेल बोलते हैं पटरी को, जो पटरी आप देख रहे हैं जिस पर ट्रेन दौड़ती है उसको बोलते हैं रेल। जिस रास्ते चलती है, रेल के रास्ते चलती है, वो हुआ रेलवे। और ट्रेन जिस कंपार्टमेंट में बैठ के चलते हैं वो हुआ ट्रेन का हिस्सा। ठीक है, तो हम जो जनरली बोल देते हैं
कि मैं रेल से गया था दिल्ली, मैं रेल से गया था पटना, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, रेल तो बोलते हैं पटरी को हम, मैं पटरी से पटना नहीं गया था, और ना मैं पटरी से दिल्ली गया था, मैं ट्रेन से गया था। पूरी बात बोलनी हो तो आप बोलिए कि मैं रेलवे ट्रेन से गया था दिल्ली या पटना। ठीक है, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में हम रेल ही बोलते हैं उसको। ठीक है, अच्छा अब आइए, टू मूव फॉरवर्ड द ट्रेन रिक्वायर्स ए फोर्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ट्रेन को आगे चलना है। ठीक है, ये हमारा ट्रेन है, ये हमारी पटरी है, ये पटरी है, और ट्रेन को आगे चलना है। तो गेट दिस फोर्स द ट्रेन अप्लाई द फोर्स ऑन द रेल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रेन पटरी पर एक पीछे की ओर फोर्स लगाता है। ठीक है, द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द ट्रेन एंड द बैकवर्ड फोर्स ऑन द रेल्स फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ट्रेन को चाहिए फोर्स आगे की ओर चलने के लिए, इसलिए ट्रेन जो है पटरी पर एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ। ये दोनों फोर्स जो है सो इक्वल एंड अपोजिट हैं, एंड दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। पटरी के कारण जो फोर्स लग रहा है ट्रेन पर, उसके कारण ट्रेन आगे जाती है। ठीक है, यदि पटरी को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेल्स से वो जमीन में गाड़ा हुआ रहता है, फिक्स किया रहता है, ऐसा नहीं हो अगर, तो ट्रेन जो फोर्स लगा रहा है पटरी पर पीछे की ओर, उसके लिए उससे क्या होगा, ये पटरी पीछे चलना शुरू कर देगी, और ये पटरी जो फोर्स लगा रही है ट्रेन पर, उससे ट्रेन आगे की ओर जाएगी। ठीक है, तो ये पटरी पीछे को नहीं चली जाए ट्रेन के फोर्स लगाने के कारण, इसलिए पटरी को हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि पटरी पर मोटे मोटे कील से उसको जमीन में ठोक दिया जाता है ताकि फिक्स रहे, ये मूव नहीं करे, और ट्रेन सिर्फ आगे की ओर बढ़े। ओके, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ट्रेन पटरी पर, और पटरी लगा रही है ट्रेन पर, दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन हो रहा है पटरी पर, रिएक्शन हो रहा है ट्रेन पर। क्लियर? If the rails were not nailed down to the ground and were free to move, both the rails and the train would move in opposite directions in accordance with Newton's second law. यदि पटरी को हम नेल डाउन नहीं करें ग्राउंड में, तो रेल और ट्रेन दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स सेकंड लॉ। क्लियर? आइए अब आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि रेल की पटरियां कैसे बिछाई जाती हैं। यदि आप कभी रेलवे लाइन के बगल से गुजरे हों तो आपने देखा होगा कि सबसे नीचे में एक लकड़ी का या स्टील का या कंक्रीट का बड़ा बड़ा ब्लॉक नीचे रखा रहता है, उसे हम बोलते हैं स्लीपर्स। ओके, इसके ऊपर, तो ये आपका हो गया स्लीपर। ठीक है, उसके ऊपर रेलवे की पटरी रहती है जिस पर ट्रेन चलती है। ठीक है, तो ये हमारा रेल्स हुआ। ये पटरियां अपने स्थान से खिसक नहीं जाएं, इसलिए इन पटरियों को मोटे मोटे नेल की सहायता से स्लीपर के साथ जमीन में ठोक के रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं। ओके, अब ये जानिए कि स्लीपर्स को रखते क्यों हैं। इसलिए कि स्लीपर्स का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ट्रेन का अपना वेट है, दैट इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ट्रेन के द्वारा जमीन पर लगाया गया फोर्स कांस्टेंट है। यदि हम कई स्लीपर्स लगाकर स्लीपर्स की एरिया को बढ़ा देते हैं, तो जमीन पर लगने वाला प्रेशर जो ट्रेन के वेट के कारण है, उसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो कांस्टेंट है बिकॉज दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ट्रेन, और एरिया जितना बढ़ेगा उतना प्रेशर का मान कम होगा, और प्रेशर का मान कम होने से पटरी के जमीन में धंसने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, फाइनली we come to an interesting example of the motion of horse and the cart, which involves the application of both
the second and third law of motion, which have shown the situation in figure 6. So this is our cart and this is the horse. The different forces acting on the cart and the horse are indicated in the figure. The cart is tied to the horse by a rope. So this is the rope. The horse applies a force F on the cart to pull it to the right. Okay? By reaction, the cart also applies a force of reaction R, which is equal and opposite to the force F applied by the horse on the cart. So this reactionary force applied by the cart on the horse is to the left. Okay? So there are two forces acting on the cart in the horizontal direction. One is the force F applied by the horse on the cart towards right, and another force is the force of friction between the wheels of the cart and the ground. So for the motion of the cart, it is necessary that this force F, capital F, must exceed the force of friction, small f. Clear? So cart can move only if the force capital F applied by the horse on the cart exceeds the force of friction, small f, between the wheels of the cart and the ground. Okay? The mass of the cart is acting in the vertically downward direction. Okay? So suppose the mass of the cart is m dash. So weight is m dash g, and the reaction of the ground on the cart in the vertical upward direction is m dash. So because there is no vertical motion of the cart, we must have n dash must be equal to m dash g. Okay, this much is clear now. To move forward, the horse pushes the ground by a force P at angle theta with the horizontal. Okay, by reaction, the ground also exerts a force H on the horse at an angle theta with the horizontal. The weight of the horse mg acts vertically downward. The normal reaction of the ground is n in the vertically upward direction. The force H exerted by the ground on the horse can be resolved into two mutually perpendicular components. One is H cos theta in the horizontal direction towards right, and another is H sin theta in the vertically upward direction. Okay, so now we have seen the motion of the cart. The cart will move only if the force applied by the horse on the cart exceeds the frictional force F due to the ground. Okay, so now we now consider the motion of the horse. The motion of the horse is decided by the forces acting on the horse. So let us see what are the forces acting on the horse. One is the weight mg of the horse acting vertically downward. Another is the vertical component of the force H, which is H sin theta, acting upward. And third is the normal reaction N of the ground in the upward direction. Because the horse has no motion in the vertical direction, or for the vertical equilibrium of the horse, we must have N plus H sin theta equal to mg. Clear? The forces acting on the horse in the horizontal direction are: first is the horizontal component of the force H, which is H cos theta in the forward direction towards right. The pull F of the cart in the backward direction, that is towards left, and the frictional force F between the hoof of the horse and the ground in the backward direction. As the horse tends to move forward, the frictional force acts
backward. Okay, so net force on the horse in the forward direction is h cos theta minus this force F, which is the force exerted by the cart on the horse in the backward direction towards left. This is the force of friction acting towards left. Only if h cos theta exceeds F plus F, the horse can move forward in accordance with Newton's second law. Clear? Note that in empty space, there is nothing to produce reaction, and hence, if the horse and cart were in empty space, the horse cannot pull the cart. Note also that all the work that we do are the result of the force of reaction. So this is all about Newton's third law. We have seen the third law and various examples like the equilibrium of a book on a table, how do we walk, how a train moves, and the most interesting example of the horse and the cart. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.